So guys, now we are going to discuss about mechanism of opening and closing of stomata. So I'll tell you, mechanism of opening and closing of stomata was first time explained by this scientist called लेविट. यस, लेविट साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार 1974 में एक्सप्लेन किया हुआ था कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होते हैं. यस, so this side I will show you opening of stomata and this side I will show you closing of stomata. Okay, so opening and closing of stomata is mainly based on concentration of potassium ions. ठीक है, opening and closing of stomata is mainly based on concentration of potassium ions in the guard cell. If potassium ions are more in guard cell, less in subsidiary cell or accessory cell, then stomata will get open. And if potassium ion are more in accessory cell or subsidiary cell and less in guard cell, so stomata will get closed. Okay, so opening of stomata generally takes place at day period of time, and closing of stomata generally takes place at night period of time. Opening of stomata at a daytime and closing of stomata at night period of time. Now just listen. Stomata, they get open at daytime. At daytime, starch get converted into you can say मैलिक एसिड. डे टाइम में क्या होता है, अब आप सोचोगे स्टार्च कहां से आया. जनरली बाय द फोटोसिंथेसिस प्लांट आर प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज, बट दे आर कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू द स्टार्च जस्ट टू अवॉइड ईटिंग ऑफ अ लीफ बाय द ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल, बिकॉज स्टार्च की स्मेल नहीं आती है. तो कन्वर्जन किसमें हो जाता है, स्टार्च में. सो एट अ डे टाइम starch get converted into malic acid and malic acid converted into two different chemicals. So one is a hydrogen ions and second one is malate ions. One is hydrogen ion and second one is malate ion. फिर से सुन लीजिए. एट अ डे टाइम अगर आपको ये मैकेनिज्म समझा तो ही ओपनिंग समझेगा. देख लीजिए. एट अ डे टाइम starch get converted into malic acid and malic acid converted into two different ion, hydrogen ion and malate ion. Hydrogen ion are given out. हाइड्रोजन आयन डायरेक्टली बाहर चले जाते हैं. मुझे देखने दीजिए आपको यहाँ तक दिख रहा है या नहीं. जस्ट अ मिनट. ओके, सो at a day time starch get converted into malic acid and malic acid converted into hydrogen ion and malate ion. Hydrogen ions are given out and malate ions are converted into potassium ions. Malate ions का किस में कन्वर्जन हो जाता है, पोटेशियम आयन. और जर्नी हमारी यहाँ से शुरुआत होती है. नाउ potassium ions are more in गार्ड सेल्स. यहाँ पे देखिए गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना. सो गार्ड सेल्स हैव मोर पोटेशियम आयंस. Guard cells are having more potassium ion as compared to now this is subsidiary cell. Subsidiary cell have very less amount of potassium ions. Subsidiary cells have very less amount of potassium ions. अब यहाँ पे देखिए guard cells are having more potassium ion and subsidiary cells are having less potassium ion. Now you just imagine the definition of osmosis. What was osmosis? Osmosis is nothing but the movement of solvent from lower concentration to that of higher concentration through semi-permeable membrane. और उसमें दो टाइप होते हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस. सो स्टोमेटा की ओपनिंग एंडोस्मोसिस के कारण होती है और स्टोमेटा की क्लोजिंग एक्सोस्मोसिस के कारण होती है. एंडोस्मोसिस में क्या होता है देखिए. नाउ पोटेशियम आयंस are less in the subsidiary cell and potassium ion are more in the guard cell. So what will happen? As more and more potassium ion will move from lower concentration to the higher concentration. Means potassium ion will move from accessory cell to the guard cell. And guard cell में potassium ion की concentration बढ़ती जाएगी. A time will come. एक ऐसा टाइम आएगा कि गार्ड सेल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गार्ड सेल विल बिकम फुल्ली टर्जिड.
गार्ड सेल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फुल्ली टर्जिड, और अब इसके अंदर पानी और पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह है ही नहीं, और उस समय पोटेशियम आयन मतलब गार्ड सेल क्या होंगे, ब्लास्ट होंगे, ओपन होंगे, और जब ओपन होंगे तो इसमें से दो चीजें बाहर निकलेगी स्टोमेटा में से। कौन सी दो चीजें बाहर निकलेगी, वन विल बी O2 एंड सेकंड विल बी वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दिस विल बी कॉल्ड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एट अ डे टाइम। दिन में क्या होता है, स्टार्च का कन्वर्जन मैलिक एसिड में होता है, और मैलिक एसिड का कन्वर्जन हाइड्रोजन और मेलेट आयंस में होता है। हाइड्रोजन आयन तो स्टोमेटा के बाहर चले, मतलब गार्ड सेल्स के बाहर चले जाते हैं, लेकिन मेलेट आयन का कन्वर्जन होता है पोटेशियम आयन में। अब पोटेशियम आयन की जो क्वांटिटी वो गार्ड सेल में काफी ज्यादा होती है, और एक्सेसरी सेल जैसे हम सब्सिडियरी सेल कहते हैं उसमें काफी कम होता है। तो अगर पोटेशियम आयन गार्ड सेल में ज्यादा एक्सेसरी में कम है, तो एक्सेसरी में से गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा ड्यू टू द एंडोस्मोसिस, और एंडोस्मोसिस के कारण एक ऐसा टाइम आएगा कि गार्ड सेल पूरा पूरा फुल हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा टर्जिड स्वेलो हो जाएगा, और एक पोटेशियम आयन भी अंदर नहीं आ पाएगा, और उस समय क्या होगा, गार्ड सेल्स डायरेक्टली ब्लास्ट होंगे, ब्लास्ट होंगे मतलब ओपन होंगे, और जब ओपन होंगे तो उनमें से ऑक्सीजन भी बाहर आएगा और वाटर वेपर फॉर्म में भी बाहर आएगा, तो ऐसे हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हम जानते हैं कि स्टोमेटा की क्लोजिंग कैसी होती है। सो एज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा वाज एट द डे टाइम, नाउ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज एट द नाइट टाइम। इट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन concentration of potassium ion, but now not in guard cell, it will be more in the subsidiary cell. So I'll tell you, at night time CO2 increases, pH becomes acidic around 5 pH, becomes acidic around 5 pH, and ABA stand for abscisic acid. This hormone will be produced, and now what this hormone will do, this hormone avoid entry of potassium ion in गार्ड सेल। ये देखिए, नाइट पीरियड में क्या होता है, CO2 की क्वांटिटी बढ़ती है, CO2 की क्वांटिटी बढ़ती है और pH एसिडिक हो जाता है, कितना हो जाता है 5, और उस समय ABA हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ABA इज एब्सिसिक एसिड, दिस हार्मोन इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और जब ABA हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, ABA हार्मोन पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में नहीं बढ़ने देता, और पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बढ़ जाती है, पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेसरी सेल में बढ़ जाती है, और जैसे एक्सेसरी सेल में पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा, देखिए आप देखिए क्या होता है, as potassium ion is increased in the accessory cell, potassium ion increase in the accessory cell, and it is very less in guard cells। देखिए, पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में भी कम है, लेकिन एक्सेसरी सेल में काफी ज्यादा है। अब आप एक्सोस्मोसिस सोचिए, यस, इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, एक्सोस्मोसिस। देखिए, एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो बाहर चले जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एंडोस्मोसिस देखा तो बाहर का क्वांटिटी जो थी वाटर की वो अंदर चली गई। अब एक्सोस्मोसिस में क्या होगा, अंदर की जो क्वांटिटी वो बाहर चली जाएगी। हम ऑस्मोसिस में क्या देखते हैं, मूवमेंट कैसी होती है, लोअर टू हायर। अब यहाँ पे देखिए, पोटेशियम आयन बाहर कम थे और अंदर ज्यादा थे, तो लोअर टू हायर, बाहर से अंदर गए। और यहाँ पे देखिए, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में कम है और एक्सेसरी में ज्यादा है, तो वैसे ही लोअर टू हायर जाएगा। तो अगर पोटेशियम आयन गार्ड सेल में से बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है, अब पोटेशियम की क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जाती है, पोटेशियम की क्वांटिटी अंदर की तरफ गार्ड में कम हो जाती है और बाहर की तरफ ज्यादा हो जाती है, तो क्या होगा, स्टोमेटा में स्क्वीज हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे बड़े हो गए थे टर्जिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे फ्लैसिड। क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड। टर्जिड में स्वेलो, फ्लैसिड में श्रिंक। टर्जिड जब हुए थे तो स्टोमेटा ऐसे ओपन हो गए थे, अब फ्लैसिड हो गए तो स्टोमेटा क्या हो गया, धीरे धीरे करके ऐसे बंद हो जाएंगे। स्टोमेटा जब ओपन हो रहे थे तो क्या निकल रहा था बाहर, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। अब जब स्टोमेटा बंद हो रहे हैं तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड दिस वन इज
opening of stomata. This one is opening of stomata, this one is closing of stomata. At a daytime, starch get converted to malic acid converted into hydrogen and potassium ion. Malatine converted into hydrogen ion and malatine converted into potassium ion. Potassium ion are less in accessory and more in guard cell, so they move from accessory to guard cell. Guard cell become turgid and undergo opening. At a night time, CO2 increase, pH becomes 5, and AB hormone do not allow potassium to enter inside in guard cell. So ultimately potassium ion moves from guard cell into accessory cell. So guard cell become a squeeze and undergo closing, and once they close, they take the CO2 inside. So this is the opening and closing of stomata.